नमस्कार। डीवी लाइव के इस ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, इस ब्रेकिंग में सबसे बड़ी बात इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आ रही है। आप जैसा जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, क्योंकि एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि हमें 3 महीने का समय दिया जाए। 3 नहीं बल्कि 4 महीने का, जून तक का समय चाहिए था, और ये मार्च, जबकि 15 फरवरी को ये आदेश हुआ था कि आप 2 हफ्ते में यानी 6 मार्च तक पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में उससे। लेकिन यहां हरीश साल्वे जो हैं एसबीआई की तरफ से, वो लड़ते हुए, वो अपनी बात रखते हुए, लेकिन दूसरी तरफ सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काफी नाराज यहां दिखाई दिए। उन्होंने पूछा कि आपने 26 दिनों तक क्या किया, आखिर आज की तारीख तक आपने क्यों नहीं जमा किया। ये बहुत सारी बातें। इस वक्त सीजेआई अपना फैसला सुना रहे हैं, फैसला लिखवा रहे हैं। सीधे चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, क्या कुछ वहां चल रहा है उसको देखते हैं, और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सीधा सुप्रीम कोर्ट, जो उनका जो रूम नंबर 1 है, जहां ये 5 जजों की पीठ अपना फैसला सुना रही है। 5 जजों की पीठ में सीजेआई खुद हैं, डीवाई चंद्रचूड़, उनके अलावा संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा। ये 5 जजों की पीठ इस वक्त, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ अपना फैसला लिखवा रहे हैं। सुनिए जरा, सीधे चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, सुनिए। This information would be a time-consuming process. Full stop. Next main para. The crux of the submission of the SBI is that the matching of information to ascertain who contributed to which political party is a time-consuming process, since the information is maintained in 2 separate silos. Full stop. Now, the operative directions which have been issued by this court, as reproduced earlier, the operative directions of this court directed the SBI to disclose the transactions as set out in direction B and direction C extracted above. Full stop. SBI submits in its application itself that the donor details and redemption details are available, albeit in separate silos. Full stop. In other words, the directions which have been issued by this court require SBI to disclose information which is already available to it. Next para. At this stage, it would be material to refer to the FAQs on electoral bonds published by the SBI, which states that the Know Your Customer documents must be submitted by the purchaser each time that the bond is purchased, irrespective of whether the purchaser has a KYC verified SBI account. Full stop. That is, वहां फुटनोट दे दीजिए, और उसको FAQ क्वेश्चन नंबर 16 जजमेंट से मैं आपको बाद में बताता हूं कहां से लेना है आपको. That is one set of documents, into brackets, the electoral bond application form, KYC documents, and pay in slip, can, bracket complete, can only be used to purchase one electoral bond. Full stop. Contributors who have an SBI account
as well as those who do not, have to submit the electoral bond application, know your customer documentation, and proof of payment through NEFT, check, or demand draft. Full stop. Thus, the details of the electoral bonds which have been purchased and which have been directed to be disclosed by this court are readily available. Next. The FAQ, similarly, the FAQs on electoral bonds published by the SBI with respect to the redemption of bonds states that each political party can only open one current account for electoral bond redemption. Full stop. The current account could be opened by the political party only in 4 authorized branches in Chennai, Kolkata, Mumbai, and New Delhi. Full stop. There are 29, factually, nothing turns on that. All right. There are 29 authorized. designated branches. 29 designated branches. Yes. Full stop. They're in the 4 cities or other places also? No, all over the country. All over the country, brother. Not in these 4 places. Thus, information about a political party's encashment of electoral bonds would be stored only in these branches, which would be clearly accessible. Stop. Slips and other details would have to be, submitted to the main branch. Full stop. There is no dispute about the fact, as there cannot be, that this process was duly followed. Full stop. Together with the application which has been filed by SBI for the extension of time. तो दोस्तों यहां आप सुन रहे हैं सीधे सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ यहां फैसला लिखवा रहे हैं और बहुत ही नाराज हैं, नाराजगी जता रहे हैं यहां और पूछ रहे हैं कि आखिर आपने 26 दिनों तक किया क्या। एसबीआई को यहां सीधे लताड़ लगाते हुए सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो लिखवा रहे हैं और फैसले में क्या कुछ आ रहा है ये सीधे आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सीधे फिर से कोर्ट रूम ले चलते हैं, कोर्ट रूम नंबर 1 जहां डीवाई चंद्रचूड़ के साथ 4 और भी जज मौजूद हैं और ये तमाम जज कौन कौन से जज हैं जल्दी से आपको बताना चाहता हूं और इन जजों में इन्हीं 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह फैसला सुनाया था। डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा संजीव खन्ना हैं, संजीव खन्ना के अलावा जेबी पारदीवाला, बीआर गवई, मनोज मिश्रा, ये तमाम जो जजेज हैं, ये जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये फैसला सुना रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला और बहुत नाराजगी जता रहे हैं यहां सीजेआई चंद्रचूड़ अपने फैसले को लिखवा रहे हैं। चलिए सीधे चलते हैं, फिर से क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। SBI seeking an extension of time for the disclosure of details of the purchase and redemption of electoral bonds until 30 June 2024 is dismissed. Full stop. SBI is directed to disclose the details, the close of business hours, 12 March 2024. Full stop. As regards the ECI, we direct that ECI shall compile the information and publish the details in its official website
no later than by 7 days. 1 week. by 15 March, by 5 p.m. on 15 March 2024. Full stop. During the course of the pendency of the proceedings before the Constitution Bench, ECI had, in compliance with the interim orders passed by this court, filed its statements which have been maintained in the custody of the court. Full stop. Copies of the statements which were filed by ECI before this court would be maintained in the office of the ECI. Full stop. ECI shall publish the details. तो सुना दोस्तों, यहां सीधा जो फैसला लिखवा रहे हैं DY चंद्रचूड़, इनका कहना है कि 15 मार्च यानी आज है 11 मार्च और आज से ठीक चौथे दिन 15 मार्च को शाम 5 बजे तक पूरी जानकारी देनी होगी SBI को। 15 मार्च को शाम 5 बजे तक पूरी जानकारी SBI को जमा करनी पड़ेगी और इलेक्टोरल बॉन्ड पर बहुत बड़ी हार मानी जा सकती है यहां, खासकर सरकारी पक्ष की तरफ से, SBI की तरफ से। हरीश साल्वे देश के सबसे बड़े वकील और उनके सामने कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ये लड़ रहे हैं और 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने अभी फैसला सुना दिया है, ये फैसला लिखवा रहे हैं। आगे क्या कुछ हो रहा है जरा फिर से चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर बार नंबर 1 में, और वहां पर क्या कुछ रूम नंबर 1 में जो फैसला सुनाया जा रहा है, फैसले को सुनिए। और अब ये जो आया है निकल के कि 15 मार्च को 5 बजे शाम तक SBI अपना पूरा का पूरी रिपोर्ट यहां जमा करे। सुनिए जरा। For extension of time, we place SBI on notice that this court may be inclined to proceed against it for full disobedience of the judgment if SBI does not comply with the directions of this court as set out in its judgment dated 15 February 2024 by the timelines indicated in this order. Full stop. The miscellaneous application for extension of time shall accordingly stand dismissed. Contempt petitions shall stand disposed of at this stage in the above terms. My lord, I just want to say one thing, my lord, because I don't want tomorrow to be again at the end of Mr. Prashant Bhushan's contempt. Your lordships have said disclose B and disclose C, the directions. We will disclose both of that. That is easy. Correlating the purchase with the beneficiary is not something which we are required to do. Then it's easy. When my lord, the Chief Justice dictated the order, it is very clear that there is no scope for any confusion in what is dictated in the court. Lordship. We are grateful. Lordship, one other diary number, which is the contempt of matter related, diary number 11296. Lordship, please stand. Yes. तो ये CJI के कोर्ट नंबर 1 से आप देख रहे थे सीधे लाइव, और इस लाइव में जो बातें सामने आई हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल शाम 5 बजे तक SBI जो है वो जमा करे अपनी पूरी जानकारी ECI को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शाम 5 बजे तक 15 तारीख को, 15 मार्च, आज से ठीक 4 दिन बाद 15 मार्च को ये पूरा का पूरा जो पूरे डिटेल्स हैं वो यहां जमा करे। तो बहुत कुछ यहां, और आज यहां बहुत बड़ा झटका SBI को, बहुत बड़ा झटका मोदी सरकार को यहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगता
चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ यहां मौजूद हैं हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी। सीधा अमलेंदु जी, आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारी चीजें और इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक बहुत बड़ा फैसला आज जिसकी उम्मीद थी वो आ गया है ये फैसला, और इस फैसले में मुंह की खानी पड़ी है एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। और यहां से क्या कुछ देखा जाए, और सबसे पहले आप भी लगातार फैसले को सुन रहे थे, क्या कुछ यहां लिखा रहे थे और क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, एक तो राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तगड़ी एक तरीके से कहा जाए फटकार एसबीआई को लगाई है। ये पूछा कि भाई 26 दिनों तक आपने किया क्या हमारे आदेश के बाद, अब तक आपने इस पर क्या किया, पहले तो ये बताइए। तो एसबीआई की तरफ से इसको बताने के लिए कोई जवाब नहीं था। एसबीआई ने घुमाने की कोशिश की एक तरीके से, मतलब उनके वहाँ वकील थे हरीश साल्वे, उन्होंने बताया कि साहब वो मिलान करना है। तो जस्टिस गवई ने कहा कि भाई ये तो हमारे आदेश में पहले से स्पष्ट है कि आपको क्या बताना है, तो आप इसको घुमाने की कोशिश मत कीजिए। एक तरीके से ये कहा गया। इसका मतलब कि जो हम लोग ने पिछले दिनों राजीव चर्चा की थी ब्रेकिंग में कि एसबीआई किस तरीके से मामले को घुमाने की कोशिश कर रहा है और इसको अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, ठीक वही बात एक तरीके से कहा जाए तो जस्टिस गवई ने अपने उस बीच में कही बात सुनते हुए हरीश साल्वे की। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया राजीव, वो ये है कि मतलब कल शाम तक एसबीआई को ये सारा डाटा देना होगा चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग 15 मार्च की शाम 5 बजे तक इसको अपनी साइट पे अपलोड करेगा। यानी कि जो काम आप 26 दिन में नहीं कर पाए, अब एसबीआई किस तरीके से 2 दिन में करेगा राजीव जी। अब ये इसका मतलब कि जो शंकाएं उठ रही थी कि ये किसी के इशारे पे एसबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है समय मांगने के लिए, उस पर एक तरीके से कहा जाए वो मोहर लग गई है कि सुप्रीम कोर्ट किसी के इशारे पर, एसबीआई जो है किसी के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था समय मांगने के लिए। जो काम आप बता रहे थे, जो आपने तर्क रखे अदालत में जाकर के, और फिर आप ये कहा कि अच्छा जो सीजीआई थे उन्होंने ये भी कहा है अपने आदेश में कि भाई आपने जो है खुद बताया है कि आपने इसको बहुत कॉन्फिडेंशियल रखा है, और सारी आपने जो इसमें ये दिया है कि जब तक कि कोई इस पर कोई विवाद नहीं होता है और कोई एप्रोप्रिएट एजेंसी या कोई कोर्ट इसको नहीं मांगता है, तब तक आप ये जानकारी किसी को नहीं देंगे। तो आप तो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वो सारी जानकारी आपके पास है, और कोई सक्षम न्यायालय जो है या कोई एजेंसी इसको मांगेगी तो आप इसकी जानकारी देंगे। तो एक तरीके से इसमें ये भी हुआ है कि हरीश साल्वे जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की तरफ से खड़े हुए, उनका कहना था, वो अभी आप देख भी रहे थे, हरीश साल्वे हालांकि फिजिकली वहां नहीं थे लेकिन वो वर्चुअली वहां पर थे, कैमरे के आगे वो खड़े थे, और वहां बैठ करके जो बातें हो रही थी उसमें वो कह रहे हैं कि सील कवर लिफाफे में ये पूरी जानकारी हमारे मुंबई ब्रांच में है, उसको मिलान करने में समय लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीजेआई ने यहां कहा कि आपसे हमने कहा ही नहीं था कि मिलान कीजिए, हमने ये कहा था कि पूरी जानकारी जो है वो आप हमारे हवाले कर दीजिए, यानी कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसको सार्वजनिक करेगा, और इसको यही कि आप कल 12 मार्च शाम 5 बजे तक एनी हाउ इसको जमा कीजिए, कल शाम 5 बजे तक, यानी कल 12 मार्च तक आप जमा कीजिए, और इसके बाद 15 मार्च शाम 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। अमलेंदु जी, ये छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, और यहां सीधे फटकार लगाते हुए, नाराजगी जताते हुए एसबीआई पर, एसबीआई की तरफ से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक हरीश साल्वे खड़े होते हैं, लेकिन हरीश साल्वे को मुंह की खानी पड़ती है। यहां हरीश साल्वे को कोर्ट इतनी फटकार लगाता है शुरुआत से ही, बहुत ही नाराजगी जताते हुए, और यहां उन्होंने साफ साफ कहा, दूसरे कोर्ट में सुनवाई एडीआर की, जो प्रशांत भूषण ने जो याचिका दायर की है, उस याचिका पर भी दूसरी कोर्ट में सुनवाई होगी। तो ये तमाम बातें, और क्या कुछ जानकारी है अमलेंदु जी? बिल्कुल यही जानकारी राजीव जी कि मतलब सीजीआई ने और पूरी बेंच ने कहा कि हमारा आदेश एकदम स्पष्ट था, इसमें कहीं कोई झोल नहीं था। आदेश था कि आपके पास जो जानकारी मांगी गई है वो आपको देनी है, आपको कोई मिलान नहीं करना है। साल्वे जी ने जब कहा कि साहब वो 2 साइलोज में जो है वो भर के रखे गई हैं हमारी मुंबई ब्रांच में, इसका मतलब कि आपके पास वो जानकारी है, मुंबई ब्रांच में जानकारी इकट्ठी है, आपको कहीं और से जानकारी इकट्ठी नहीं करनी। मतलब एक तरह से कहा जाए कि जो हरीश साल्वे साहब की दलील थी उसमें खुद जो थे वो एसबीआई फंसता जा रहा था। एक तक तो आप कह रहे थे कि आपको सारी ब्रांच से डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, बहुत गोपनीय जानकारी है, उसका मिलान करना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप ये बता रहे हैं कि सारी जानकारी आपकी मुंबई ब्रांच में पहुंच गई है। तो एक तरीके से कहा जाए कि जो दलीलें थी वो एकदम शुरुआती दौर में ही बिल्कुल फिसलती हुई वो दलील नजर आई, और सुप्रीम कोर्ट को उस दलीलों पे कोई भरोसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त फटकार जो है वो लगाई एसबीआई
और कि भाई आप इसका मतलब एक तरीके से जो है वो हमारे आदेश के साथ आपने छेड़खानी की, मतलब इसका जो लगाया जा सकता है निताज जो है वो ये निकाला जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आपने मतलब एसबीआई ने जो है हमारे आदेश के साथ कोई छेड़छाड़ की है, जबकि आदेश हमारा एकदम साफ था कि आपको क्या जानकारी देनी है और कब तक देनी है। तो ये कुल मिलाकर के एक तरीके से देखा जाए राजीव जी, जो अब देश के अंदर जो अब इसको लेकर के सब चीज़ें उठेंगी। एक तब तो आप 15 मार्च को जो है आपको नया चुनाव आयुक्त की बैठक बुलाई है आपने जी, उसको चुनने के लिए। इसका मतलब राजीव जी सारी चीजें सॉरी जी बिल्कुल, ये बिल्कुल। सारी चीजें जो एक तरीके से देखा जाए ये 15 मार्च में तक, तैयारी जी है। बिल्कुल 15 मार्च तक ये पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर होनी चाहिए। अब मोहलत सिर्फ 1 दिनों की दी गई है, आज और कल, यानी कल शाम तक एनी हाउ सुप्रीम